Good So morning, let ma'am. us start the class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Let us start the class now. So we did Taylor series expansion and the error estimate of Taylor series expansion, and we have to do questions on them. So write a question. Find the linear and quadratic Taylor series polynomial approximations to the function fxy is equal to 2x cube plus 3y cube minus 4x square y about the point 1, 2. Obtain the maximum absolute error in the region x minus 1 is less than mod of x minus 1 is less than 0.01 and mod of y minus 2 is less than 0.1. ठीक, सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारा क्या था? देख लेते हैं हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या था पहले. सो हमारा अबाउट द पॉइंट एच के x0 y0 था, x0 प्लस एच y0 प्लस के. दिस इज इक्वल टू f ऑफ x0 y0 प्लस h del by del x plus k del by del y operated on f at x0 y0 plus 1 upon 2 factorial h del by del x plus k del by del y whole square operated on x0 y0 plus so on. ठीक है, ये मिलेगा. अच्छा, हमारे एंड सो ऑन आगे के टर्म्स भी मिलेंगे. नाउ वी हैव द क्यूबिक इक्वेशन. तो क्यूबिक इक्वेशन है मतलब हम लोग डेल एक्स बाई डेल 3x अपॉन डेल 3f अपॉन डेल एफ एक्स क्यूब और डेल वाई क्यूब तक निकाल सकते हैं. ठीक, तो इसका मतलब हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं. इसके बाद वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे. डेल बाई डेल एक्स प्लस के del by del y whole cube at operated on f plus so on. So we have to find these three terms and the point x0 y0 is 1 2 given in the question. So first you find f of 1 2. So find f of 1 2. Here x0 y0, this is 1 2 about which you have to expand. So find out the value of f at 1 2. Del f by del x at the point 1 2 fx at 1 2. निकालो जल्दी जल्दी. I'm 18. Similarly, this is 18. This is fy at 1 2. Then fxx at 1 2 means del 2f upon del x square at 1 2. Similarly, fyy at 1 2.
f del 2f upon del x del y at 1 2 मीन्स एफ एक्स वाई एट 1 2। इसकी जरूरत किस लिए पड़ेगी? सेकेंड वाले के लिए। जब आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो हमें एक टर्म 2hk इंटू del 2f अपॉन del x del y ये भी मिलेगा ना, होल स्क्वायर है। सो ये सारे टर्म्स निकालो, वेरीफाई करो। दिस इज -10, दिस इज 32, दिस इज -4। ये तो निकाल लोगे ना सब अपने आप। आई डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस, यू कैन फाइंड आउट बाय योर ओन। मैम एफ एक्स वाई निकाल के बता दीजिए एक बार। Yes. एफ एक्स वाई नहीं निकाल पा रहे हो? पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। दिस इज दिस del y del x of del f by del y। आप कर लोगे? ओके मैम। And this is at the point 1 2। Similarly fyy 36। एंड थर्ड टर्म्स में आपको क्या क्या मिलेगा? f ट्रिपल x मिलेगा। Ma'am, हम्म f double x at 1 comma 2, is it +4 or -4? f डबल x एट 1 2, f डबल x क्या मिलेगा? 12x minus 8. -4 is तो coming, 4 man. आ रहा है। -4 ही आ रहा है। -4 ही आ रहा है। -4. Check your calculation। Okay. Similarly x y y निकालोगे at any point, so this will come out to be 0, and f triple x ये कितना आएगा at the point 1 2? -4 f triple x means 12 आएगा, 12 में and f triple y at the point 1 2 18। 18। ठीक, now coming to the formula, फॉर्मूले में रख दो सब उठा के। Okay, so linear approximation is है हमारा एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू f 1 2 प्लस x minus 1 into fx 1 2 plus y minus 2 into fy 1 2। ठीक है, here the value of h is x minus 1 and the value of k is y minus 2। टेलर सीरीज एक्सटेंशन में जैसे करते थे, you have to shift the origin at hk। ठीक, ना समझ में आ रहा हो तो हम पूरा वैसे ही लिखें जैसे लिखा हुआ है। लिख दीजिए मैम वैसे ही। चलो, so h is this and k is this, so we have h x minus 1 fx del by del x del by del x plus y minus 2 k into del by del y of f at the point 1 2। ठीक, सेकेंड वाला टर्म क्या ओके था? मैम। प्लस h
del by del x plus y minus 2 del by del y का whole square at the point 1 2. ठीक, एंड सो ऑन, ये हमें मिलेगा, आगे वाले टर्म से मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें चाहिए लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर अप्रोक्सीमेशन देखिए क्या आएगा। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन मींस द अप्रोक्सीमेशन व्हिच हैज ओनली 1 degree of x and y. So we can see that we have to consider only this term and this term to have 1 degree of x and y, because this will have the quadratic approximation, this will have the second degree of x. So we will leave this term for linear approximation. So is it clear to everybody? So we are going to leave this term for linear approximation. ठीक, सो दिस, अब हम अगर इसमें वैल्यू रखें, सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमें क्या मिलेगा? f12 प्लस x minus 1 into fx at the point 1 2 plus y minus 2 into fy at the point 1 2. This is the linear approximation. Now you put the values of all the terms. So we have 18 minus 10 into x minus 1 plus 32 into y minus 2. This is the linear approximation. ठीक, now coming to the quadratic approximation. Quadratic means second degree approximation. Or now this is fxy is equal to f12 plus x minus 1 fx plus y minus 2 fy, ये तो linear approximation का term हुआ, plus x minus 1 into del y del x plus y minus 2 into del by del y a whole square at the point 1 2 f12. ठीक, now इसे expand करो, ये वाला टर्म देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी x minus 1 whole square del by del x operated on f at the point 1 2 whole square. ठीक, plus 2 times x minus 1 y minus 2 del 2f upon del x del y at the point 1 2. फंक्शन कंटिन्यूअस है तो del x del y will be equal to del y del x, so we can add up to get it 2 times, plus y minus 2 whole square del 2f upon del y square at the point 1 2. ठीक, सो अब ये वैल्यूज उठा के रखो इसमें। सो एफ एक्स वाई क्या हुआ हमारा? f12 is 18 plus minus 10. So minus 10 into x minus 1 and plus 32 into y minus 2, ये तो वही मिला, plus x minus 1 whole square और f x x at 1 2 minus 4. So minus 4 plus 2 times x minus and del f x y. f x y कितना आया था? minus 8. तो minus 8 into 2 minus 16. x minus 1 y minus 2 plus f y y आया है 36. तो 36
y minus 2 whole square. This is the quadratic approximation. Now you can expand it and get the values in the term of x square, xy and y square. इससे आगे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो. ठीक, सम टर्म इनटू एक्स स्क्वायर प्लस जो भी मिलेगा वो आप लिखोगे आगे लास्टली. Plus some constant term. Okay, now we have to find the maximum absolute error. Now, in case of linear approximation, we have to find the maximum absolute error, and similarly, in case of quadratic, you can find out the maximum absolute error. So, how you use the Taylor series expansion? This is clear to everybody, or I have to repeat it? Clear? Everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The method is same for all such situations. Yes, it will be same for all such situations. Now, in the question, it was mentioned that you have to find the linear and quadratic approximation. Now, in the question, it was mentioned that you have to find out the linear and quadratic approximation. Now, if it was simply mentioned that you have to find a Taylor series expansion, then you have to find out all the terms up to which the differential can be calculated. Like for the Taylor series expansion, you will have to find out this term also, because it will have non-zero value. ठीक, ये वाला That term means भी in this निकालोगे. case, we can go to 1/3 factorial term, not beyond that. In this case, because the degree of the polynomial which you are considering is 3, so you can find out the value up till del 3 f upon del x square or del 3 f upon del y square only. इसके above जब fourth degree निकालोगे तो values will be 0. So no need to find out all these values, because all the terms will all obviously become 0 in this case. In some other case, if the polynomial is of degree 4, then you can find out the value of del 4 f upon del x की power 4 and so on. If the degree of it depends upon the degree of the polynomial up to which you can differentiate the function f. ठीक? To find the Taylor series expansion, you will have to find out the third term also. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now to find the error term. Now in linear approximation, we have the formula for the error term in linear approximation and for quadratic approximation separately. So for linear approximation, maximum absolute error is mod of R1 is, this is less than equal to b by 2, and it is x minus x0, and it is given that x minus 1 is less than 0.01. So 0.01 whole square plus y minus y0 means y minus 2. It is given this is less than 0.1. So 0.1 whole square ka whole square. Now this term is equal to 0.00605 b. Now you have to calculate the value of b.
Now what is B? B is maximum of mod of fxx, mod of fxy, mod of fyy. Now you have calculated all these three values. Now in this region, x minus 1 less than 0.01 and y minus 2 less than 0.1. Now you have calculated all these values. निकाल लेते हैं mod of fxx की maximum value. So maximum of mod of fxx. ठीक, we have to take the, now this is maximum of fxx is 2x minus 8y. Now we have to calculate this in the region x minus 1 less than this and y minus 2 less than this. This means the maximum value of x minus 1 is 0.01 and maximum value of y minus 2 is 0.1. Okay? So first of all, we have to transform this equation in the form of x minus 1 and y minus 2 so that we can use this two values. Okay? So this is maximum of 2 times x minus 1 minus 8 times y minus 2 minus 4. ठीक? Ma'am, So हाँ, that will be 2x or 12x. 12x, sorry. ठीक? So now this is less Okay. than equal to maximum of mod of 12x minus 1 plus y minus 2 का mod. ठीक, इसी तरह यहाँ से भी 12 को बाहर ला सकते हो, हम यहाँ से लिख दें डायरेक्ट, ये कर सकते हो ना, प्लस mod of 4 is 4. अब देखो maximum value of this is 0.001 and maximum value of y minus 2 is 0.1. So this is equal to 12 into 0.01 plus 8 into 0.1 plus 4. So this is equal to 4.92. Similarly ये वाली और ये वाली भी निकालो. Now maximum of mod of fxy. This is maximum of minus 8x. अब minus 8x को लिखो x minus 1 और उस वाले फॉर्म में. तो this is equal to क्या आएगा? Maximum of minus 8x, mod of minus 8x और 8x सेम होगा तो हम इसको हटा सकते हैं. So इसको हम लोग लिख सकते हैं mod of x minus 1 plus 8. लिख सकते हैं, 8x आएगा. No, this is less than equal to, अलग अलग कर लो. 8 x minus 1 plus 8. So this is equal to 8 into 0.01 plus 8. So this is equal to 8.08. Now तीसरा निकालो. Maximum of mod of fyy. So this is equal to maximum of कितना है fyy? 18y.
नाउ 18y को इस फॉर्म में लिखो. दिस इज मैक्सिमम ऑफ 18y minus 2 plus 36. 37.8 आ रहा है. मैक्सिमम बाहर लिखना पड़ेगा. Maximum 18 mod 5 minus 2 plus 36. So this is 18 into 0.1 plus 36. So this is 37.8. Now what is the value of B? B is इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू रख दो यहाँ पे. मैक्सिमम ऑफ 4.92 और 8.08 और 37.8. क्या आई? 37.8. तो अब मॉड ऑफ R1 की वैल्यू निकाल लो. मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा ये. कैसे आया ये? 0.00605 into 37.8. नाउ क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए अच्छा, यहाँ पे एक चीज छोटी है, तुम लोग ने भी नहीं ध्यान दिया. क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में ये वाला टर्म 1/2 फैक्टोरियल के साथ था, है ना? वो छूट गया, ऊपर भी नहीं लिखा हमने. दिस वाज 1/3 फैक्टोरियल फॉर्मूले में. ये सही कर लेना, जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा वो. दिस विल बी 1/2 टाइम्स. हमने इसको लिख लिया भी नहीं है, इसी को लिया है. तो यू कैन राइट, नीचे सही कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अपॉन 2. तो ये क्या था? 2 4 था, 2 हो गया. ये क्या था? 16. क्या था? हमने क्या लिखा था? भूल गए. 16 यहाँ पे क्या लिखा? 16 था तो 8 हो गया. और ये 36 था तो 18 हो गया. यस मैम. चलो अब क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का एरर निकालना है. Ma'am, then this inequality is the answer. Maximum absolute error in linear approximation is 0.23. नहीं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? 0.23. 0.23. This is the maximum absolute error. Means the error is always less than equal to this. Means the maximum is 0.23. Okay, this is the error term. So maximum term will be 0.23. अब for quadratic approximation फॉर्मूला क्या था हमारे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के लिए? mod of R2 from the last term, this was b by 6 and x minus x0 means x minus 1 plus mod of y minus 2 whole cube. ये था. So put the values. So this comes out to be b by 6 into 0.001 plus 0.1 whole cube. So ये वैल्यू आएगी हमारी b by 6 into 0.001
B31 जब कैलकुलेट करोगे, where what is the value of B? B is maximum of mod of f triple x mod of fxxy mod of fxyy or mod of fyy. मैम वो b/6 के बाद 0.01 वैल्यू होगी, हाँ वो b/6 के बाद 0.01 वैल्यू होगी। यस मैम 0.01 होगा ये मैम। होल क्यूब भी तो है। मैम x अच्छा, ये माइनस b/6 मैम ये एक्स में अच्छा एक्स में ये अच्छा चलो 0.01 लिख लो। अब ठीक है, चलो अब हमें ma'am. ये वैल्यूज निकालनी है। नाउ जो हमारी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज also a constant value. So all these are constant values, so we don't have to write it in the term of x minus 1 and y minus 2. We can directly calculate the maximum here. So f triple x constant value है 12 आ रही है, f double x y calculate करोगे constant value 8 आएगी, f x double y this is 0 हमने calculate किया था, and f triple y this is a constant value 18. So we can directly calculate the maximum from here. So this is 18 maximum value. Now you can calculate the value of mod of R2. So क्या आया 18/6 into 0.001331. ठीक, तो ये approximately equal to 0.004 आएगा. So here the maximum absolute error is 0.004. Clear everybody? Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। So similarly, you can find the Taylor series expansion of all different values of f for different functions f from the book, and I'll share the assignment also, so you can solve questions from there also. Now we have maximum and minimum values of a function. Now here we will study the maxima minima in case of function of 2 variables or function of 3 variables. Mostly we will study in case of function of 2 variables. Take. Now we know how to calculate the maxima and minima of a function in the case of function of 1 variable. क्या करते हैं? First, if it is a function of suppose f is a function of x, then first we calculate del f by del x is equal to 0 and calculate the points at which the function is and the derivative is 0. So if those 2 points are, suppose there are 2 points coming from f, then we find the second derivative. If the second derivative is negative, then we say that the function is maximum at that point, and if the second derivative comes out to be positive, then we say that the function is minimum at that point. Now how to follow the rules for
two variables. Now first write the definition for maxima and minima. The point AB is called a point of relative or local minimum if f of, if you consider the neighborhood, then that value should be less than in the neighborhood of f. ठीक, AB for every h. ठीक, suppose this is the point here and suppose this is the point AB. This is A and this is B. So this is FAB. So you consider the neighborhood means this is the neighborhood. Okay. So here you vary from H and here you vary from K. Okay. So if you consider the neighborhood, then in the neighborhood of AB, the value, this value should be minimum. That is all the values that you are getting around this point. This FAB is minimum. All these values are greater than f of AB. Okay. Then this is called the point of local minima. That is, you are only considering the neighborhood of that point. Of course, you will consider in the function only. Suppose this is the function. Okay. So what will be the neighborhood of this point? All those points that lie on this line and all those points that lie on this curve up till here to here. Okay. Not here and here point, because these points do not lie on the curve. You will only consider the points that lie on the curve, because that will follow the function f. These points will not follow the function f. So make it very clear. Yes. Here it is a very small neighborhood, so h and k should be infinitesimally small positive numbers. Small positive number. That is why we are considering the term relative, okay, or local. This may not be the point of minima. Like here you say that here the function is increasing and then it is coming here and then again the function is increasing. So in this neighborhood, this is the point of local minima. But if you consider the whole function, this is not the point of minima. This is the point of minima. ठीक? Okay, ma'am. So you write then FAB is called the relative or local minimum value. अच्छा, आप लोगों को नोटिस मिली होगी कि आज फोरनून के बाद और कल की क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी ड्यू टू कॉन्वोकेशन 17 एंड 18. मिली है ना सबको नोटिस? Yes, ma'am. लेकिन हमारी क्लास जो है वो नहीं, हमारी नहीं होगी. हम लोग की सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो हम लोग ले सकते हैं क्लास अपनी. बिकॉज आज कितने बजे से कैंसिल है? आज फोरनून के बाद, मतलब 1 बजे तक जो क्लास हो जाएंगी उसके बाद से कैंसिल है. छुट्टी किस चीज के लिए है? छुट्टी वो कॉन्वोकेशन है कल, इसलिए. तो आज फोरनून के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैक्सिमम टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए होगी. और कल तो सबको कॉन्वोकेशन ज्वाइन करना ही है, तो इस वजह से छुट्टी है. तो कल वाली क्लास हमारी सुबह 8 बजे वाली होगी. आई विल टेक द क्लास because the convocation will start from 10, so we can take the class. मैम कॉन्वोकेशन में क्या होगा मैम?
डिग्री मिलेगी भाई, 4 साल जो पढ़ चुके उनको डिग्री नहीं मिलेगी, वो भी ऑनलाइन ही होगा। हमको भी अटेंड करना होगा मैम वो। नहीं, तुम्हें नहीं अटेंड करना है, एक्सक्यूज मी मैम। पर टीचर्स को अटेंड करना होगा, तो वो पढ़ाएंगे कैसे तुम्हें, इसलिए क्लास सस्पेंड करी गई है। ओके मैम। हम्म, चलो अभी इसी तरह मैम जो पॉइंट ऑफ लोकल मैथ। हाँ मैम, जो पेपर आपने बनाया था मैम, हर टर्न का पेपर ऐसा ही आएगा? पेपर हमने नहीं बनाया था, पहली बार। दूसरा कैसा आएगा वो हमें नहीं मालूम, पर 20 क्वेश्चन मैम रहेंगे, बिकॉज अब मैम इस 30 बार जो मैम 30 मिनट्स के मैम, उससे बहुत ज्यादा था मैम, वो नहीं सॉल्व हो रहे थे मैम। 30 मिनट बेटा, में 20 क्वेश्चन बहुत थे मैम टाइम बहुत कम था और मैम, वो नहीं हो टाइम भी रहे थे। बहुत ज्यादा था क्वेश्चन। हाँ, I agree from you, but I cannot do anything because the person who is making the paper, he is मैम not agreeing क्वेश्चंस from इजी your मैम viewpoint, and all the branches of your BTech first semester will have the same quiz at same timing and same paper. मैम तो वो मैम ठीक है, क्वेश्चंस अगर कभी कभी क्वेश्चंस इजी टफ पेपर टफ आ जाता है, तो वो सबके लिए टफ होता है ना। मैम पेपर टफ नहीं था मैम, लेंदी था मैम क्वेश्चंस हाँ, बन रहे थे, बट मैम टाइम नहीं था मैम सॉल्व करने के लिए। मैं उसमें 20 मल्टीपल तक तो चॉइस पहुंच ही नहीं पाए थे मैम। अगर लेंदी था तो लेंदी सबके लिए था ना। मैम फिर मैम और ये मान के चला जा रहा है कि तुम लोग बुक खोल के देख के तब सॉल्व कर रहे हो, तो मैम ऐसा इसीलिए मैम नहीं मैम, आपको ऐसी कोई बात मैम नहीं है अगर मैम। बुक खोलेंगे तो मैम 5 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे मैम मैम उसमें। नजर हटाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैम एक नहीं बनेगा। मैम हाँ, तो इसीलिए तो बनाया गया है ऐसा, कोई नजर हटाने का टाइम ना मिले। मैम मैम फिर वो तो चीटिंग करने के लिए मैम कर रहे हैं कि चीटिंग करें हम लोग, 10-15 लोग का ग्रुप बनाए, फिर मैम उसमें क्वेश्चन शेयर करें। मैम खुद से करते तो मैम मैम 5 ऐसे तो वो तो कोई नहीं करोगे रहा ही था तुम मैम। लोग, मैम वो नहीं तो करते करोगे मैम। ही, वो तो चीटिंग मान कर के रहा चला है। जाता है। वही पिछले साल के बच्चों के मार्क्स देख के ये समझ में आ गया है कि ये सब बच्चे करते ही करते हैं। मैम हम लोग के मार्क्स देखिए बिकॉज मैम। एंड सेमेस्टर अभी पहला क्विज है ना, सेकंड में देखेंगे। वो तो हम ये मान के ही नहीं चल रहे हैं कि तुम वो सब नहीं करोगे। मैम अब तो और करना और पड़ेगा। मैम मेरा सबमिट नहीं हो पाया। अब वो तुम बोल रहे हो, ठीक है चलो, आप लोग खुद ही एडमिट कर रहे हो। मैम 10 मिनट बढ़ाने की बात करो ना। बेटा, बस हम टाइम नहीं कर बता सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते ना, वो मेरे मैम हाथ में नहीं है। 45 मिनट्स कर दीजिए मैम प्लीज, मैम बहुत ज्यादा हो जाता है मैम। कम से कम 1 घंटा तो कीजिए। हम्म, वो मेरे हाथ मैम में मेरा नहीं है, वो सबमिट हम नहीं हो नहीं पाया कर। था। अब देखो वो सारी चीजें अभी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है सब कुछ। वो आपको वहीं पे सबमिट करना है उसी प्लेटफॉर्म में, और हमने पहले ही बोल दिया था कि अपना इंश्योर कर लो कि वो नेटवर्क हम यूज करें जो नेटवर्क सही आता हो। और इतना तो हम लोग को पता रहता है ना कि हमारे यहाँ जैसे जियो का, मान लो फॉर एग्जांपल, किसी के यहाँ जियो का नेटवर्क अच्छा आता है, किसी के यहाँ एयरटेल का अच्छा आता है, तो वो इंश्योर कर ले कि हमें नेटवर्क इसका अच्छा मिलेगा, तो हमें इसी का यूज करना है, डेटा पैक डलवा के रखना है कि खत्म ना हो, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। मैम एक्चुअली नेटवर्क मेरा इसीलिए सही था। 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हमने सबमिशन के लिए इसलिए दिया था। अब उसमें लोगों ने, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि 10:35 पे हमें सबमिट करना है। नहीं, आपको सबमिट 10:30 पर ही करना है। 5 मिनट्स एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है कि मान लो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी वो सबमिशन लेट लेता है, तो वो आपका ले, पर आप सबमिट 10:30 के पहले कर दो। अगर आप 10 ये सोच के चल रहे हो कि 10:35 तक का हमारे पास समय है और उस समय आप सबमिट कर रहे हैं और तब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, फिर लेट हो रही है, तो वो फिर नहीं लिया जाएगा। वो सबमिशन आपको इतनी वहीं देर पर में ही मैम करना क्वेश्चन है। नहीं पढ़ पाया। एक क्वेश्चन का जरा आंसर बता दीजिएगा तो 12th का। क्वेश्चंस के सारे आंसर्स जो है, जैसे ही आपने क्विज सबमिट किया होगा आपको दिख जाएंगे, वो सारे सही आंसर्स हैं। मैम वो आंसर सही तो मतलब मैम लॉजिकल नहीं है मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए बस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ से कुछ होगा, आप बस एक बार चेक कर सकती हैं प्लीज। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 10 भी मैम उसमें मतलब आप डाल के देखिए वैल्यू, वो डाइवर्ट करेगा मैम, तो
ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 ठीक है, हम देख लेंगे, मैम कल कल क्लास में बाकी डिस्कस कर लेंगे। बैचेस में मैम कल बाकी मैम बैचेस में बाकी 40 बैचेस मिनट्स में 40 मिनट्स। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नहीं ऐसा मैम काफी नहीं हुआ बैचेस में होगा। मैम 40 मिनट्स मैम बता रहे थे Yes, बच्चे। ma'am, 40 40 मिनट्स minutes चाहिए। में। मैम 40 मैम मिनट्स डी मिले। ग्रुप में ऐसा हुआ था। मैम हम लोग को पता नहीं, 30 हो मिनट्स सकता है मिले। उनके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैम आप तो मैम दिया ही नहीं। नहीं तो हमें 30 मिनट्स ही देने को कहा गया था, तो हमने पूरा वही फॉलो किया, हमें 30 मिनट्स ही देना है। मैम they have got कह extra दीजिएगा 5 मैम, minutes बहुत कम because टाइम they मिलता है were मैम। unable to refresh the मैम question. 6 बेटा लोग हैं अब नेक्स्ट वाले, अब हो सकता है कि क्विज, पहला क्विज था तो उनको दे दिया गया हो 10 मिनट एक्स्ट्रा, सेकंड क्विज से बिल्कुल किसी को नहीं दिया जाएगा। हम तो लोग को अब दे आप उसी दीजिएगा। की दीजिए प्रैक्टिस, मैम, उसी की सीनियर प्रैक्टिस करिए। अथॉरिटीज से मैम। हमारा भी तो पछता है। हाँ तो अब प्रैक्टिस कर लो ना, उसके लिए उनको सेकंड में प्रॉब्लम होगी। वो मान के मैम आप चलेंगे कि सीनियर उनको जो अथॉरिटीज से है, बोल दीजिए मैम, प्लीज मैम इतना नहीं हो थोड़ा सा पाता टाइम मैम। बता दीजिए रहे। उनको सुनने नहीं वाला है, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम 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 30 कोची है ना मिनट बहुत रूट लेट टेस्ट बनाते में हैं। हो गया यार, कितना मतलब एक क्वेश्चन कह दीजिएगा मैम, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब बोल के देख लेंगे, पर मान के चलो कि कुछ होगा नहीं। ठीक, ओके, जैसा ट्राई है वैसे ही कीजिएगा मैम। चलेगा। मैम प्लीज एक बार 9th क्वेश्चन भी चेक कर दीजिएगा। यस मैम। देखो जिसका 9th 10th और क्या 9 10th और 12th बोला है, किसी का जिसका 9 10th एंड 12th हो गया हो, वो इन बच्चों को मदद कर देना। मैम आप अभी मैम अगर थोड़ा टाइम बचा है तो आप वो पीडीएफ खोल लीजिए मैम, उसमें सीधे सीधे दिख जाएगा मैम, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है मतलब देखना कि वो गलत है मतलब। मुझे लग रहा है हेलो 12th का मैम। आंसर गलत। मैम 12th का तो आंसर मतलब करेक्शन हो चुका है, 12th का आंसर बी कर दिया गया है। यस मैम। हाँ मैम, और 10th का नन ऑफ दीज होगा मैम, आप देख लीजिए मतलब। यस मैम, बेटा हमारे पास तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है, हम देख लेते हैं। आंसर बदला गया है क्या? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 12th। हम 10th देख लीजिए, 12th का तो बदल दिया है। पहले ए आंसर फिर वो बी कर दिया है मैम, शिवदत्त सर ने बोला। 10th का हाँ मैम मैम 10th का नन होगा ना मैम, नन होगा। ए आंसर को बी कर दिया। मैम बी पे अब तो ये 1 पे इक्वालिटी होल्ड कैसे करेगी मैम डी होगा 10th। होगा मैम बी होगी 10th की। यस मैम, क्या बी होगा? होना होगा मैम, सी। ये ठीक है। डी अब ये पहले ही ऐसे होगा तो ना मैम। देखने में नहीं पता चलेगा ना, चेक करना पड़ेगा। नहीं मैम, वो तो सीधा ही दिख रहा है ना मैम, इक्वलिटी। मैम 2x हो जाएगा। इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी मैम, माइनस इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी ना मैम, 1 पे तो यस मैम, -1 से 1 चला डाइवर्स जाएगा कर तो जाएगा। इंफिनिटी एक्सटेंड हो जाएगा ना मैम। यस सर। उन्होंने बी दे रखा है मैम आंसर, बट हमने डी लगाया यस तो मैम। गलत है मतलब रॉन्ग मैम दिया। कोची है ना रूट टेस्ट में मॉड एन करके होता है कि सिर्फ एन? मैम वो तो मैम बात की बात है मैम, उसमें तो -1 इक्वलिटी होल्ड हो जाएगा मैम, फिर तो खत्म ही हो जाएगा मैम, वो इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगा मैम इक्वलिटी में। और कौन सा 12th वाला? यस मैम। यस मैम। नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका क्या आंसर दिया हुआ था? मैम ए दे रखा था मैम पहले तो, पर मैम सी होना चाहिए मैम इसका आंसर। बी होगा मैम सी मैम बी होना चाहिए मैम। मैम इसका बी होगा मैम, इसमें भी सी तो 1/n है ना, होगा ये ना तो इसका। कन्वर्जेंट होता है। ये तो इसमें लिबनीज टेस्ट मैम लगाओगे बॉम्बे होगा, कन्वर्जेंट बी फॉर नहीं बॉम्बे। आएगा। मैम हम तो मैम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे ना इसमें। इसमें कंपैरिजन कहाँ लगा सकते हो? तो नो मैम, ऑल्टरनेटिव लेबनिज सीरीज से ही है। होगा। लेबनीज से नो होगा। लेबनीज से होगा। ये तो बी आ रहा है कन्वर्जेंट मैम, क्लास में भी नॉट कराया आपने। क्लास में भी हमने कराया। क्लास में भी कराया है, तब भी पूछ रहे हो। ये तो प्लस माइनस है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज का है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? मैम ए मैम दिया ए था दिया मैम है इसका पहले तो, आंसर, ए आंसर तो बी सीधे आ रहा है। सीधे ये तो आएगा ए दिया है। बी होगा। मैम थर्ड वाले में ये लेबनीज क्वेश्चन है नहीं उसमें बी लगेगा। दी है इसके आंसर। नहीं तो इसका ए क्यों नहीं हो सकता है? मैम ए तो 1/3/2 है ना। ये तो कन्वर्जेंट है ना मैम। ए ग्रेटर देन मैम नॉट ई इक्वल टू कन्वर्जेंट। 3/2 आएगा। n into हाँ, तो
रेशियो टेस्ट नहीं लगा आज। मैम इसे और लगा लेंगे ना, कंपैरिजन वाला, n की पावर 3/2 ले लेंगे ना। n की पावर 3/2 कंपैरिजन टेस्ट मैम हो जाएगा। n की पावर 3/2 ले लेंगे मैम, और n की पावर 3/2 ले लोगे तो लिमिट तो 1 आ जाएगा ना, लिमिट 1 नहीं होनी चाहिए ना कंपैरिजन टेस्ट में। मैम ये तो क्यों नहीं मैम, जीरो नहीं होनी चाहिए। मैम पी सीरीज जीरो नहीं होनी चाहिए। मैम फाइनाइट है ना, सॉरी हाँ, जीरो नहीं होनी चाहिए। 1 तो फाइनाइट। हाँ हाँ 1 मैम फर्स्ट कन्वर्जेंट है मैम, फर्स्ट है बट बी वाला नहीं है मैम। फर्स्ट भी नॉट करना कन्वर्जेंट। तो सेकंड भी आंसर करना क्या दिया हुआ है इसका? सेकंड नहीं ए आंसर दिया ए मैम, बी दिया आ रहा है। ए दिया है। बी होगा। ए दिया है। मैम बी हो, यस मैम। मैम बी हो। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो हम चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। मैम 9th भी बता दो। हाँ मैम ओके। 9th वाला क्या आंसर है? मैम हमारा डी आ रहा था, सी डी है। सी आंसर है, लेकिन डी हम लोग ये आ रहा है हमारे। x to the power of डिपेंडेंट n वैल्यू upon आएगी। n. This is in every bounded interval of r. Bounded है। मैम कंडीशनली होगा ना, कंडीशनल x पे डिपेंड करेगा। यस मैम। बाउंडेड है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो होगा ना, ये सी तो होगा। आंसर क्या दिया है? मैम इन एवरी बाउंडेड इंटरवल ऑफ r पूछा है ना, एब्सोल्युटली तो होगा ना, बाउंडेड इंटरवल है ना। बाउंडेड इंटरवल है तो नीचे वाला तो 1/n तो होता ही है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट x टू द पावर ऑफ n बाउंडेड है तो वो भी कन्वर्जेंट हो गया। मैम केवल x बाउंडेड है ना? अरे तो x ही बाउंडेड है ना, तो x को ही तो बाउंडेड रखना है। बाउंडेड इंटरवल में x टू द पावर ऑफ n बाउंडेड नहीं हो जाएगा। यस मैम, x की आप कोई वैल्यू लेके देखिए। बाउंडेड थोड़ी आएगी ना। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा इसका आंसर। तब आप x को 1 डाल दीजिए सीक्वेंस ना। an कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस an into bn भी कन्वर्जेंट होती है। वहीं से आएगा एब्सोल्युटली। मैम आप x को 1 डाल दीजिए मैम, 1 अच्छा आप कोई भी ले लीजिए, उसमें तो नहीं आएगा ना कन्वर्जेंट। 1/n सीरीज बन जाएगी। मैम 1/n डाइवर्जेंट होगी ना। मैम फिजिक्स कन्वर्जेंट नहीं लगेगा मैम, वो मैम जो होता है ना कंपैरिजन टेस्ट खोल ना लगेगा। मैम अगर -1/, कुछ होता है ऐसे करके तो मैम उस पे देखते चेक करते लेबनीज लगा के। मैम एक क्वेश्चन था मैम x इसके को साथ में, उसमें n मैम डालोगे तो a1 क्या x को 1 डाल दे। यस मैम, मैम n को 1 डाल, x को 1 डाल दीजिए आप, 1/n बन जाएगा ना मैम। भाई मैम ये मैम ये h की दास x में तो दिया है वेरी मैम कर रहा है ना क्वेश्चन। बाउंडेड इंटरवल में। चलो ठीक है, हम देखेंगे इसका क्या आता है। ऐसे एकदम से देख के नहीं बता पाएंगे, देख के बताएंगे। मैम वो दो तो आप चेंज करवा सकते मैम हैं एक ना। बार थर्ड वाला और हाँ हम देखते हैं पहले क्वेश्चन, पहले हम खुद ही चेक कर लें, उसके बाद फिर हम उस जिसने बनाया है उससे डिस्कस करेंगे ना। पहले तो खुद ही देख लें उसके आंसर क्या आ रहे हैं हर एंगल से। ठीक है, अभी एकदम से थैंक यू मैम। को इतना बोला नहीं गलत। मैम क्लास है। हाँ तो थैंक यू मैम। क्लास है। चलो ठीक है, लीव करो। मैक्सिमम क्या डेफिनेशन हम लिख के भेज देंगे। ओके थैंक यू मैम। 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 थैंक यू मैम।